Assalamu alaikum. This is the fourth part of HTML series, and in this lecture I will show you how to create HTML table. So हम एक table create करेंगे. Table आपको पता है, it's composed of rows and columns. Rows and columns का बना होता है, जिसमें हम data arrange करते हैं. Got it? So in HTML, how can we create this? क्या करेंगे? Like this is the table, जिसमें हमारे पास 3 rows हैं and we have 2 columns. Got it? And this is ये जो है यहाँ पे this is first row, second row and third row. This is the first column and this is the second column. And जहाँ पे एक row and column intersect करता है, that's known as a cell. Got it? Table cell. जैसे this row, second row and first column, जहाँ पे इन्होंने intersect किया, that's known as a cell. So this is the cell. ठीक है? And आप देखते हैं कि यहाँ पे ये जो table है, जो इसमें 3 rows है, first row इसमें हमने heading mention किया and this is the data. This all is data. It can be anything. ये हमारे पास it can be a simple text. ये links हो सकती है. It can be images or other type of data. तो यहाँ पे एक simple text है, इसको हमने arrange किया है in these cells. So first row specifies the heading and यहाँ पे हमने mention किया है simple data. ठीक है? तो ये हम कैसे create करेंगे in HTML? इसके लिए हमें क्या करना है? You have to open a notepad file, notepad++ editor मैंने use किया है. आपको पता है page structure and within within the body section आपको क्या करना है? आपको table एक create करना है. So within body section आप create करेंगे using table tag. So एक table tag हम mention कर रहे हैं. ठीक है? Remember this is a peer tag. ठीक है? So we have to mention its off tag somewhere. So and this is also a block level element. तो वो क्या होता है? It means if you are going to create another table that gets stacked below the previous one, means हमने एक table बनाया, after that आपने और एक table create किया, so that second table that gets stacked below the previous one. Got it? तो अब जो ये table होता है, already said it's made of rows and columns का. ठीक है? So row create करने के लिए we have to use another tag, tr. tr stands for table row. This is also a peer tag, means you have to mention its end tag. So एक row हमें create करना है using tr tag. अब जो ये row है, you know, इस row को हम further division करते हैं, इसको हम एक cells, इसको हम columns में divide करते हैं, या we can say table cells में हम divide करते हैं. For that आपको पता है, जो मैंने आपको table अभी दिखाया है, जो मैंने आपको एक table दिखाया है, you can see here. जैसे ये this table. तो यहाँ पे ये जो टेबल रो फर्स्ट रो है, इसमें हमने हेडिंग मेंशन की है. ठीक है? तो दिस ऑल इज डेटा. एंड डेटा हम कैसे मेंशन करते हैं? यूजिंग टीडी टैग. सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट रो में जो पहला होता है, इट्स ऑप्शनल. ठीक है? सो हम हेडिंग मेंशन करते हैं. दैट हेडिंग इज मेंशन यूजिंग टीएच टैग, टेबल हेडिंग. टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग. ठीक है? तो पहली हेडिंग है हमारे पास रोल नंबर. दिस इज ऑल्सो अ पेयर टैग. नाउ अनदर हेडिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट, दैट्स एड्रेस. So this is another heading. You will save this. हाँ, एक रो हमने क्रिएट कर लिया, रोल नंबर एंड एड्रेस. नाउ वी विल सी द रिजल्ट हियर. ये जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फोल्डर बनाया है, दिस इज
ठीक है। सो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, जो हमने लिया था फर्स्ट हेडिंग रोल नंबर एंड सेकंड हेडिंग एड्रेस, तो वो डिस्प्ले हो गया। बट हम ये नहीं बोल सकते, वी कैन से दैट वेदर इट्स अ सिंपल टेक्स्ट, ये टेबल है क्या है, बिकॉज यहाँ पे हमने एक चीज करना है, वी हैव टू मेंशन हियर बॉर्डर एट्रीब्यूट। अभी इसका बॉर्डर जो है एट्रीब्यूट दैट इज सेट टू 0, सो वी विल सेट टू 1 पिक्सल। ओके, सो एक बॉर्डर आ जाएगा इस टेबल के, Oh, I'm really sorry. This is the attribute of table tag. So I have to mention here its border attribute, and I'll set this border attribute to 1. It means it will set the border of this table to 1 pixel. See, देखिए यहाँ पे एक border आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका क्या करती हूँ, आई विल चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस टेबल, दैट हम कर सकते हैं यूजिंग दिस हाइट एट्रीब्यूट, चेंज कर सकते हैं हाइट ऑफ टेबल। तो यहाँ पे मैं हाइट ले रही हूँ 100 पिक्सल्स। यू कैन सेट दिस बाय यूजिंग परसेंटेज ऑल्सो। विड्थ आई कैन चेंज like 200. I will save this. You will see the result. So हमने क्या किया, we changed the height and width of this table. And by default जो heading होती है it's bold, इसका जो text होता है it's bold and it's centered. ठीक है, alignment जो है center में आता है। Now हम क्या करेंगे, we have to I'll show you जो ये टेबल है, दिस एक रो तो हमने क्रिएट कर लिया। नाउ वी हैव टू क्रिएट अनदर 2 रोज, ठीक है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग अनदर tr टैग। tr स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो ठीक है, tr से हमने दूसरा रो क्रिएट कर लिया। Now we have to mention the data here. That data is mentioned using td tag, table data. ठीक है। So पहले में हमने क्या करना है, रोल नंबर मेंशन करना है, रोल नंबर लाइक 1 एंड ठीक है। So सेकेंड डेटा हमें इंसर्ट करना है लाइक so forth. ठीक है, we will save this. I'll show you here in the browser. देखिए और एक रो क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसमें हमने डेटा इंसर्ट किया 1 and so forth. And by default you can say we have used here td tag, and by default ये जो डेटा होता है it's left aligned. Got it? Now likewise you can create another row. और एक रो हम क्रिएट कर सकते हैं सेम ऐसे ही यूजिंग tr टैग। तो यहाँ पे हम फिर से डेटा मेंशन करेंगे यूजिंग td टैग। तो सेकेंड डेटा क्या है हमारे पास, जैसे रोल नंबर 2 है एंड एड्रेस वी हैव बारामूला। We'll save this, go to browser and refresh it here. देखिए क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप और भी एट्रीब्यूट्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक आप इसका कलर मेंशन करना चाहते हैं टेबल का, तो फॉर दैट bg कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे लाइक येलो। और 2 एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, वन इज सेल्फ स्पेसिंग एंड सेल्फ पैडिंग। सेल्फ स्पेसिंग से क्या होता है, ये जो सेल्फ स्पेसिंग है इट मीन्स
the distance between the cells. Between the cells, अगर हमें space increase करनी हो between the cells, so that can be done with the help of cell spacing attribute. So cell spacing हम यहाँ पे पाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो space है, I have increased that. I'll say this, you will see. So cell space जो है थोड़ी सी increase हो गई, ठीक है. So cell spacing it refers to the distance between the cells, ठीक है. Now second attribute is cell padding. अब cell padding से क्या होता है, distance, अगर हमें distance increase करनी है between the cell border and cell content, cell border and cell content के बीच में जो space है, ये आपको distance जो है increase करनी है. That we can do using cell padding attribute. So यहाँ पे like 6, ठीक है. तो increase हो गया between this border and this cell content. Got it? So this is the way we can create this HTML table. Now और एक चीज है हमारे पास, and that is if you want to merge 2 or 3 columns, or if you want to merge 2 or 3 rows, how we can do that? I'll show you here. एक टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं लाइक दिस, एक सिंपल टेबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 रोज है, वी हैव 4 कॉलम्स एंड सिंपल डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया लाइक 0, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल फर्स्ट क्रिएट दिस टेबल, आफ्टर दैट वी विल मर्ज सम रोज और मर्ज सम कॉलम्स, ठीक है. ये आपको पता है कि कैसे हमें क्रिएट करना है. तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हम और एक टेबल बनाएंगे यूजिंग दिस टेबल टैग, ठीक है. सिंपल यही 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का. सेम 4 रोज है हमारे पास, 4 कॉलम्स है हमारे पास. तो टेबल रो हमने एक बनाया, फर्स्ट रो हम क्रिएट करने जा रहे हैं. आफ्टर दैट इस रो में हमें क्या करना है, वी हैव 4 डेटा आइटम्स, या वी कैन से 4 टेबल these cells columns like 0 फर्स्ट डेटा है हमारे पास, ठीक है. आफ्टर दैट दिस इज द सिंपल टेबल, आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट. तो 4 एक रो हमने बनाया. आफ्टर दैट वी डिवाइड दैट रो इनटू 4 कॉलम. I'll say this, I'll show the result here, ठीक है. तो यहाँ पे बन गया. I will mention here the border attribute. एक border मैं यहाँ पे mention कर रही हूँ, like I will set to 1 pixel and I'll change the width and height. सेम जैसे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस इसमें, like I will change its width to 200 pixels and I will change its height to 200 pixels. ठीक है, थोड़ी सी हाइट हम इसकी कम कर देते हैं like 100, ठीक है. फर्दर वी कैन रिड्यूस इट टू 50 so that, ठीक है. तो ये हमने कर लिया. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वेट थोड़ी सी हम इंक्रीज करते हैं लाइक 400 so that it will be clearly visible to you, ठीक है. तो एक रो हमने क्रिएट कर लिया. सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अनदर 3 rows. So I'll copy this, I'll paste it here. तो सेकेंड रो क्रिएट हो गया. I'll show you, ठीक है. तो लाइकवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे क्या हो गया, I'll save this here. तो 4 रोज बन गए एंड 4 कॉलम.
ठीक है, जो मैंने आपको डेटा दिखाया था। नाउ इफ यू वांट टू मर्ज सम सेल्स लाइक हियर, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो फर्स्ट जो हमने टेबल ऑलरेडी इस टाइप का बनाया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में मैंने ये जो 4 सेल्स थी हमारे पास, इनको मैंने मर्ज कर लिया। मीन्स मैंने कॉलम्स को मर्ज किया। ठीक है, 4 कॉलम थे, इनको हमने मर्ज कर लिया। तो फर्स्ट रो में हमने 4 कॉलम्स को मर्ज कर लिया। तो ये हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग दिस इन HTML में हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, मर्ज करना है। ये जो फर्स्ट रो है, इसका जो पहला डेटा है, पहली सेल जो है, ठीक है, यहाँ पे हमें मर्ज करना है कॉलम्स को। सो फॉर दैट यू विल यूज एट्रीब्यूट कॉल स्पैन। सो कितने रोज कितने कॉलम्स को हमने कंबाइन कर लिया, 4 कॉलम्स को, दिस। ठीक है, वेट, यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट रो है, इसमें हमने 4 कॉलम्स को कंबाइन किया। तो जो ये पहली सेल है TD, यहाँ पे हमने 4 सेल्स को मर्ज किया। ठीक है, सो ये जो बाकी, आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप, हमने ये सेव किया। आई विल शो यू द रिजल्ट हियर इन वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए, सेव हो गया। ये जो फर्स्ट रो था, दिस इज द फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला डेटा था, पहली सेल थी, वहां पे हमने कंबाइन मर्ज किया 4 कॉलम्स को, हो गया। ठीक है, बट देयर इज समथिंग अनगिवन, ये चीज, वी डोंट नीड दीज 3 सेल्स। सो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो में है, ये सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ठीक है, तो ये हमें रिमूव करना है। सो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, ये हमें रिमूव करना है। सो वी विल डिलीट इट फ्रॉम हियर, सेव दिस, सी द रिजल्ट। ठीक है, आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन, मीन्स कॉलम्स को मर्ज करना। आफ्टर दैट, अब अगर आप चाहते हैं, तो ये तो हो गया हमारा। नाउ आप चाहते हैं ये जो हमारे पास यहाँ पे ये रोज है, इन रोज को हम मर्ज करें। ठीक है, सेम हम ऐसे ही कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपने कॉल स्पैन यूज किया, वहां पे आपको रो स्पैन यूज करना है। एंड आपको यहाँ पे देखना है कि आप कौन कौन सी सेल्स मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड रो है, दिस इज द थर्ड रो, this is the second row, got it? This is the third row and this is the fourth row. So second, third and fourth row को आप merge कर रहे हैं। And पहली cells, this is the first cell of second row, this is the first cell of third row and this is the first cell of fourth row. So इन तीनों को हमें merge करना है। So ये आप कैसे करेंगे? I'll show you. So second row का first data, ठीक है, so this is the second row here and इसका first data, इसको हमने merge करना है। So I will use here row span equal, so कितने rows हमें merge करने हैं, 3 rows, the second row, third row and fourth row, so total में हमें 3 rows merge करने हैं। So I'll save this, I'll show you the result। हो गया, ठीक है, बट सेम ऐसी अनइवन। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू यहाँ पे ये तो हो गया, बट वी हैव टू रिमूव दीज 2 सेल्स। सो दिस इज द थर्ड रो एंड फोर्थ रो। सो थर्ड रो हमारे पास, वी हैव दिस थर्ड रो, ये हमारे पास थर्ड रो है एंड यहाँ पे हमें एक डेटा सेल जो है रिमूव करनी है, गॉट इट? एंड दिस इज द फोर्थ रो, यहाँ पे भी हमें एक डेटा सेल, एक डेटा सेल हमें रिमूव करनी है। I'll save this,
देखें. So this is the way how we can merge 2 or 3 cells, how we can merge 2 or 3 columns. Got it? So this is all about these tables. हाँ, एक चीज यहाँ पे है, you can mention here the title. आप title mention कर सकते हैं, ठीक है? For the table using caption attribute. Using caption attribute आप क्या कर सकते हैं, आप mention कर सकते हैं its heading, so this will serve as a title, or we can say explanation for the table, ठीक है, and this will be shown at the top. So हम यहाँ पे जो हमने table tag जहाँ पे use किया वहाँ पे हम caption use करेंगे, ठीक है. So this caption tag, this is a peer tag, so we'll mention its top tag. Now in between so यहाँ पे हम caption mention करें, like this is the student table. I'll mention it here, student info. I'll save this. Sorry, refreshed here. ठीक है, तो ये caption यहाँ पे आ गया. So this serves as a title or explanation, and it's shown at the top of the table. ठीक है, so this is all about HTML tables. You can use other attributes, like you can set here the background image for this table. You can mention other attributes, but this is enough. Thanks. Allah Hafiz.